Good morning, class. Today we will conclude the chapter by the last topic, the challenges ahead. Yesterday we had discussed the programs, anti-poverty targeted programs, many schemes started by the government. Now we will see how the programs were failed and what was the reason behind them. So the result of these programs have been mixed, and one of the major reason for the less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. Moreover, these has been a lot of overlapping of schemes, and despite good intention, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving people, any deserving poor people. Therefore, the major emphasis in the recent year is proper monitoring of all poverty alleviation. तो बाद के सालों में मतलब ये था कि उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, हर लोगों के पास स्कीम पहुंचनी चाहिए थी, तो ये इनके पीछे एक इनका कारण रहा। अब हमारे पास आता है चैलेंजिंग अहेड, आगे क्या चैलेंजेस रहे, मतलब आगे रहे का मतलब इन द सेंस कि अभी हमारे पास पॉवर्टी है, लाइक 26 मिलियन करोड़ पीपल आर पुअर इन कंट्री, तो उनको कैसे उस तक ऊपर लेके आया जाए, एंड व्हाट इज़ द रियल सेंस ऑफ you can say solution of this particular problem. तो poverty has certainly declined in India, we cannot be doubt about it कि यहाँ पर poverty decline नहीं हुई, definitely it has been declined where we were 40% people were 40% people were under the BPL line. So now despite the progress, poverty reduction remains India most compelling challenges, and wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. So certain social economic groups more vulnerable to poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to the higher economic growth, increasing less or universal free and increasing stress over free universal education and elementary education, declining population growth, increasing empowerment of women and economically weaker section of society, and the physical definition of poverty, however, capture only the limited part of what poverty really means. The people, it is the minimum subsistence level of living rather than reasonable level of living. Many scholars advocated we must broaden the concept of human poverty. ठीक है, इसको पहले यहाँ तक समझते हैं कि what the text is about to saying. मेन क्या है हमारे यहाँ कि poverty तो घटी है, इतना हमें पता ही है, लेकिन जो है कि वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। ये हम देखते हैं कि अर्बन में आपको ज़्यादा गरीबी दिखाई देगी, रूरल में इतनी नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड इतना सेम नहीं है, थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत ही वनरेबल हैं पॉवर्टी के लिए, लाइक पोवर्टी रिडक्शन एक्सेप्टेड टू मेक द बेटर प्रोग्रेस ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर। उसके लिए भी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको एजुकेशन दी जाए, व्हाट इज़ you can say particular need and demand of the people so that poverty can be reduced. This would be possibly main due to the higher economic growth. अब हमें इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर मेन जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? वी हैव टू फोकस मोर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है भाई, पढ़ाने लिखाने से इन्वेस्टमेंट एक बार हो जाता है, या हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ऑटोमेटिकली फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल हैव गुड यू कैन से इनकम। तो अब देखिए, अगर सपोज करिए कोई फैमिली 25 साल पहले पुअर थी, लेकिन अब उसके यहाँ 3-4 बंदे कमाने वाले हैं, तो आज वो पुअर नहीं है। सो दिस वी कैन से इन द रेफरेंस ऑफ कंट्री इवन। सो इंक्रीजिंग स्टेट ऑफ यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहला सोर्स क्या है? हमें एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन की तरफ है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, और दूसरा ध्यान किस पे देना है? हमें पॉपुलेशन की तरफ देना है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। ठीक है, फिर है इंक्रीजिंग वुमेन एम्पावरमेंट।
ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ऑन, एंड थर्ड है आपका, नेक्स्ट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो लोग बहुत पुअर हैं उनके लिए कुछ प्लान करना है, वेदर दे वर डिपेंडेंट ऑन PDA सिस्टम और यू कैन से एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। द रोल ऑफ डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली द लिमिटेड पार्ट ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये एक लिमिटेड पार्ट है। रियली मीन्स द पीपल, मीन्स टू पीपल, मतलब वास्तव में लोगों के लिए बहुत कम लगता है कि अरे क्या एजुकेशन है, हेल्थ है, विमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन क्या है, इट इज़ अबाउट मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन रीजनेबल। ठीक है, यही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैनी स्कॉलर एडवोकेटेड दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज जो हम एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, क्या कॉन्सेप्ट था आपका, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। ठीक है, ये था हमारा कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। पहले इंसान को खाना मिल जाए, फिर सर छिपाने के लिए जगह मिल जाए, क्लोथ तो उसकी थर्ड नीड है, मतलब वो पुराने फटे पुराने कपड़ों में भी गुजारा कर सकता है। लेकिन यहाँ हमारे स्कॉलर्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स इसको थोड़ा कहते हैं, आज हमें इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब वी हैव टू कम अप फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ह्यूमन पॉवर्टी। हम इसको पॉवर्टी ना कहें, हम इसको क्या कहें, ह्यूमन पॉवर्टी। ठीक है, इसको ह्यूमन पॉवर्टी का नाम दिया गया है। जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, जब तक अपने आप को फीड खुद नहीं करते हैं, खुद खाना खाने के लायक नहीं, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, PDS पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते कि हमें सस्ता राशन मिले, तब तक हम इसको ह्यूमन पॉवर्टी कहेंगे। बट डू दे हैव एजुकेशन? ठीक है, चलिए खाने का भी हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे ह्यूमन कॉन्सेप्ट पे, ह्यूमन पॉवर्टी पे, कि क्या उनके पास एजुकेशन है। सेकेंड क्वेश्चन हुआ एजुकेशन वो रखते हैं अपने पास, फिर दूसरा उनके पास घर है, तीसरा उनके पास हेल्थ है, फिर चौथा उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, उसके बाद हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फिर उसके बाद फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये सब तो नहीं हो रहा है उनके साथ समाज में। ठीक है, इज कॉमन द वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस। तो आज ज़रूरत है समाज में पॉवर्टी का डेफिनेशन चेंज करने की। गरीब खाली जेब से गरीब नहीं है, पेट से गरीब नहीं है, ठीक है, तन से गरीब नहीं है, ये सब गरीबी के कारण बनते हैं। ठीक है, उसके पास जॉब नहीं है तो उसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो किसी से भी टॉर्चर हो सकता है, और टॉर्चर होने वाला कौन होता है, जो वीक है, जो पुअर है। ठीक है, सो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑलवेज मूविंग टारगेट, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसिटी इन द टर्म्स ऑफ only let me check one thing. हाँ, only income to all and people by the end of the next decade. मतलब अगले 10 सालों के लिए अगर हम इस प्रोग्राम को सोचकर आगे बढ़ते हैं, बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस। यहाँ से मूव करेंगे, इसके बाद और भी टारगेटेड या चैलेंजेस आएंगे, दैट स्टिल रिमेन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, and achieving gender equality and dignity to the poor. अब यहाँ पर dignity मतलब एक स्वाभिमान की बात सबसे बड़ी कही गई है। जिस देश के नागरिक के अंदर lack of dignity है, तो आप सोच कर देखिए उसके अंदर बहुत कुछ उसको अभी चाहिए। ठीक है, आप स्वाभिमान से सर कब उठाते हैं, जब आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छी जॉब है, ठीक है, आप मच कॉन्फिडेंट हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी पॉवर्टी में बहुत हद तक शामिल हैं। तो स्कॉलर्स ने ऐसे नहीं इनको रिकमेंड करा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वे किए गए हैं, देन वी कम टू द पॉइंट कि ऐसा ज़रूरी है। नाउ देर इज़ नीड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, सो दिस विल इवन बिगर टास्क, और ये अभी बहुत बड़ा टास्क है कि डिग्निटी कैसे इंसान के अंदर लाई जाए। सो हेयर दिस चैप्टर इज़ completed, and for the NCERT questions you will do all accordingly. You will see that what is the long one and short one. तो ये क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, an extra question after the video I'll send you. So till then, goodbye.